Hello friends, I am Shalabh Jain, and in the series of the 12th class poem, today we are starting your second poem, Keeping Quiet, which has been composed by Pablo Neruda, who was a Chilean poet. In this poem, Pablo Neruda has highlighted two aspects. Number one, meditation. Number two, introspection. You all know the meaning of meditation. When you just think nothing, you are just inside yourself. Your mind just flush out all the negativities, all the positivities, all the thoughts, nothing, just zero. That is called meditation. Introspection, when you analyze your pluses and minuses and you just come out as a fresh person. Why has Pablo Neruda focused on these aspects, meditation and introspection? Because today we are living in such a hostile and fast pacing world where we have time for everyone, but we do not have time for ourselves. दुनिया के लिए टाइम है, अपने लिए टाइम नहीं है. That's why Pablo Neruda has requested the people, please suspend all activities. सारे activities छोड़ दीजिए, सारे काम छोड़ दीजिए and just focus on meditation and introspection. So what is the theme of the poem? Meditation and introspection, which are the foundation stone of everyone's happy life, everyone's relaxed life. And you know, without mental peace, we are nothing. So let's start the poem. Now we will count up to 12. Poet Pablo Neruda has mentioned that we will count to 12. Very, very important question. Why has poet taken number 12? Not 9, not 8, not 7? Because of few reasons. Number 1, there are 12 digits in a clock. Number 2, there are 12 months in a year. Number 3, there are 12 sections in our fingers. Fifth is thumb. So we have 4 fingers and every finger has 3 sections. That's why 4 into 3 is equal to 12. And 12 is considered a supernatural number also. That's why Pablo Neruda has taken number 12, not any other number. तो poet कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा and we will all keep still. Still means we will be silent and without any activity. We will do nothing, we will be still. Poet is requesting for once, बस एक बार, for once, on the face of the earth, on the entire globe, on this entire earth, जहाँ भी हैं आप, in the earth, wherever you are, let's not speak in any language. Whether you speak Chinese, whether you speak English, whether you speak French, whatever language you speak, but just not speak in any language. That means you belong to any country of the world. Suspend your activities and don't talk anything. Just stop for 1 second. 1 second does not literally mean 1 second. 1 second means for a while, means stop for a while. Now listen very carefully. If more than one line start with the same word, अगर आपकी एक से ज़्यादा लाइन एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा. दिस इज योर फिगर ऑफ स्पीच, एनाफोरा. फिर सुन लीजिए, अगर आपकी पोम की स्टेंजा की कोई भी एक से ज़्यादा लाइन एक ही वर्ड से शुरू हो, दैट इज एनाफोरा. So this is anaphora. So poet has requested the people of the world, don't speak in any language and just for 1 second, means for a while, not move our arms. Over here arms is highlighting weapons. That is a metaphorical reference. You know metaphor?
जब आप दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करें, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। अगर आप लाइक एज जस्ट एज लगा के करते हैं तो सिमिली, अगर आप लाइक एज जस्ट एज नहीं लगाते दैट इज मेटाफर। ओवर हियर पोएट हैज यूज द वर्ड आर्म्स। आर्म्स मीन्स अवर हैंड्स, but over here they are signifying weapons. So don't move your arms, that means keep your weapons aside, think about the peace. Got it? It would be exotic moment. Exotic का मतलब होता है unusual, exotic का मतलब होता है uncommon, or you can say unique. So what is it over here? अगर एग्जाम में RTC आती है तो they will ask you what is it here. It refers to the silence. It refers to the time of meditation. It refers to total peace. So when everybody will be silent, that moment will be exotic moment, unusual moment, क्योंकि हम लोगों को ना नॉइज में रहने की आदत है. And when everybody will be silent, just like कोविड टाइम पर हुआ, there was no person on the road, the activities had been suspended, that was exotic time. Without rush, without engine, that means no machine will be there, no people will be over there, no noise, nothing else. We would be together, that means during that time we all will be together. Reason, suppose if I observe silence for 1 minute, there are 20, 30, 40 people are sitting before me, and I request everyone ki please, just for the sake of departed soul, keep 2 minutes silence. Everybody is silent. It means during those 2 minutes we all were together because we are observing silence for a cause. In the same manner, poet ने यहाँ पर क्या बोला, Pablo Neruda ने, when everybody will be silent, that moment will be unique and togetherness in a sudden strangeness. Because just as I will say 12, everybody will be silent. So that will be sudden strangeness because we are not habitual of living in a silent world. तो वो एनवायरनमेंट हमारे लिए स्ट्रेंज होगा, अजीब होगा, क्योंकि हमें नॉइज में रहने की आदत है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साइलेंट हो रहे हैं. दैट्स वाई द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड स्ट्रेंज. So over here, fisherman in the cold sea. Over here, poet is highlighting cold as feelinglessness. That is again metaphorical reference. Cold sea means where the whales live. But why has the poet used the word cold? In order to show coldness of human beings who are killing the whales, who are harming the whales without any grudge. ग्रज का मतलब होता है जेलस. एज यू नो, जितने भी फिशरमैन हैं, जस्ट टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी दे किल, दे डू नॉट हेजिटेट टू किल व्हेल्स. और जो वो व्हेल्स को मारते हैं तो दे आर फीलिंगलेस. दैट्स वाई द वर्ड कोल्ड हैज बीन हाईलाइटेड. तो व्हेन एवरीबडी विल बी साइलेंट, व्हेन ऑल द एक्टिविटीज विल बी सस्पेंडेड, उस टाइम पर क्या होगा, सारे काम रुक जाएंगे. तो हो सकता है कि जो फिशरमैन कोल्डली व्हेल्स को हार्म करते हैं वो उनको हार्म ना करें, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, वेदर फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड, लेकिन व्हेल्स बच जाएंगी. दे विल नॉट वैनिश फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. एक और काम होगा, कब, व्हेन एवरीबडी विल बी साइलेंट. मैन गैदरिंग सॉल्ट, द पीपल हु गैदर सॉल्ट, they will get time to see their hurt hands. Letter H is repeating alliteration. अब इसका मतलब क्या है लाइन का? Actually we people are so much busy in our day to day activities कि despite being ill, कई बार हम खुद बीमार होते हैं या फिर we are not feeling well, फिर भी हम काम पर जाते हैं क्योंकि हमें पैसा कमाना है. We do not want to give rest to our body, we do not want to give rest to our mind. लेकिन जब सब कुछ साइलेंट होगा, जस्ट लाइक अभी मैंने एग्जांपल दिया कोविड का, तो वेदर यू वांट और नॉट, आप चाहें ना चाहें आपको घर पे रुकना है,
तो ड्यूरिंग दोज डेज सब ने अपने आप को रिलैक्स किया, दे केम आउट फ्रॉम द हमड्रम ऑफ डेली लाइफ, सबको काफ़ी मेंटल पीस मिला, रिलैक्स मिला, स्लीप मिला. इन द सेम मैनर व्हेन एवरीबडी विल बी साइलेंट, नो एक्टिविटीज विल टेक प्लेस, तो पीपल हु आर बिजी इन गैदरिंग सॉल्ट, उनको भी अपने इंजर्ड हैंड्स को देखने का मौका मिलेगा. अब उनके हैंड्स क्यों इंजर्ड हो जाते हैं? क्योंकि सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंजूरियस होती हैं. सॉल्ट में जो लोग काम करते हैं सॉल्ट गैदर करने का, उनके हाथ, उनके पैर, उसमें इंजरीज हो जाती हैं, उसमें वुंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, क्योंकि ये नमक की प्रॉपर्टी होती है. तो उनको भी मौका मिलेगा अपने इंजर्ड हैंड्स को देखने का, उनको टेंड करने का, उनको सही करने का. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट RTC from the examination point of view. This one, those who prepare green wars, those, over here those word is highlighting the scientists, the politicians, the statements, जो लोग ग्रीन वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन वॉर? वॉर अगेंस्ट नेचर. In olden time, when war used to take place, it killed only human beings or injured only human beings. क्योंकि पुराने ज़माने में जो वॉर होती थी, it used to be fought with the swords, arrows and bows. तीर कमान से या जो weapons होते थे उनसे. But the destructive weapons were not there. But today, missiles have come, nuclear bombs have come, plutonium bombs have come. That means war has become so much destructive that it is not only killing human beings, it is killing nature also. और इसकी प्रिपरेशन कौन कर रहा है? जो बिग फिश हैं, जो बिग गन्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या फिर जो साइंटिस्ट्स हैं, द पीपल हु आर इन पावर, इन शॉर्ट. तो पोएट हैज पॉइंटेड ओवर हियर टू दोज पीपल की दोज हु आर बिहाइंड प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉर. War with gas, war with nature or fire. War word has been repeated over here. Repetition. As you know, the modern war is fought with gas. The powerful gas is released in any area. Thousands and thousands of people die. Chemicals, chemical war is there. War with fire, missiles, bombs, drones, they blast at any place and they cause fire. तो पोएट इज रिक्वेस्टिंग कि प्लीज जो लोग इस टाइप की वॉर की प्रिपरेशन करते हैं, और मिलता क्या है? विक्ट्री बट विदाउट सर्वाइवर. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर मीन्स द आर्मी, द कंट्री विच गेट विक्ट्री, जिसको जीत मिलती है, बदले में कॉस्ट क्या पड़ती है उसे? नो सर्वाइवर. इट मीन्स even victorious army cannot enjoy the celebration. Reason, they lose their hundreds and thousands of soldiers. अगर मुझे जीत मिल भी गई बट बदले में मेरे अपने लोग मर गए हजारों, तो उसका फायदा ही क्या? और हाउ कैन आई एंजॉय द सेलिब्रेशन ऑफ द विक्ट्री? तो मॉडर्न वॉर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड इट इज गिविंग अस नो सर्वाइवर बट ओनली विक्ट्री. तो ऐसे लोगों से पोएट ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, कि प्लीज चेंज योर क्लॉथ्स, वॉक विद योर ब्रदर्स. आई मीन जो भी आपके साथ काम करते हैं, चाहे वो लेबोरेटरीज में है, चाहे वो ऑफिस में है, जिन्होंने प्लानिंग किया डिस्ट्रक्टिव वॉर की, प्लीज अपने कपड़े चेंज कर लो. बिकॉज व्हेन वी चेंज अवर क्लॉथ्स, आवर माइंड सेट चेंजेस एंड कम इन द शेड. कहाँ बुला रहे हैं वो? अंडर द शेडो ऑफ ट्री. बस कुछ नहीं करना आपको, यू हैव टू सिट अंडर द शेडो ऑफ ट्री एंड देन यू विल सी द मैजिक. कि जिस नेचर को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, द नेचर विच यू आर डिस्ट्रॉइंग बाय योर वेपन्स, वो कितनी पीसफुल है, कितनी एडवांटेजियस है, कितनी बेनिफिशियल है, कितनी काइंड है, कितनी मर्सीफुल है, और इसको हम ख़त्म कर रहे हैं. तो मे बी पॉसिबल दोज फ्यू सेकेंड्स रियलाइजेशन कास्ट बिग इम्पैक्ट. तो पोएट एक बात और कह रहे हैं आपसे, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी. तो दोस्तों,
फ्रेंड्स, पोएट कहते हैं ये। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना कि सारे काम छोड़ दो, डोंट मूव योर बॉडी, डोंट से एनीथिंग, तो मैं यहाँ डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल इनएक्टिविटी, नो, मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लाइफ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लाइफ का काम है चलते रहना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, मीन्स लाइफ हैज अनदर नेम ऑफ प्रोग्रेस। जिस दिन हम पैदा होते हैं एंड अंटिल वी डाई, वी कीप मूविंग, हमारी बॉडी, हमारी एक्टिविटीज़, हमारी ब्रेथ सब चलता रहता है। तो लाइफ जब तक है, इट्स नेचर इज़ टू रन, लेकिन हमारा काम है इसको मॉडिफाई करना, इसको रिफाइन करना, इसको फ्रेश करना। तो लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। सो पोएट इज़ सेइंग, मैं मौत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए सब काम छोड़ दो, मेडिटेशन कर लो। लाइफ डज नॉट स्टॉप, तो मैं लाइफ को रोकने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रक, ट्रक मीन्स एसोसिएशन, मेरा मौत से कोई एसोसिएशन नहीं है, मैं मौत की बात ही नहीं करता, मैं तो लाइफ की बात कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर अगर मेडिटेशन करके, इफ़ आफ्टर ऑब्जर्विंग मेडिटेशन फॉर ए वाइल, अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो क्या बुराई है। हो सकता है कि इट गिव्स न्यू माइंडसेट टू यू, इट गिव्स वर्ल्ड ए न्यू ऑरा। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अस, का मतलब क्या है, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड ना होते, इसका मतलब हम लोग सिंगल माइंडेड हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड किस लिए, टुडे वी हैव बिकम सिंगल माइंडेड फॉर टू रीजंस। नंबर वन, कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, लाइफ चलती रहे बढ़िया, और नंबर टू, पैसा कमाए बिना रुके। तो टुडे एवरीबडी हैज बिकम सिंगल माइंडेड, they are thinking just to keep their life running and to earn more and more and more money. The poet is saying, for once could do nothing, कुछ मत करो शायद, a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and fear of death. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सुन लीजिए, क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल माइंडेडनेस। सिंगल माइंडेडनेस मीन्स when you think only in one direction, and what is that direction, life must keep running smoothly। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, लाइफ है कभी अप्स है तो कभी डाउन है, समटाइम्स वी पास थ्रू गुड फेज, समटाइम वी पास थ्रू बैड फेज, बट हम यही चाहते हैं कि लाइफ चलती रहे बढ़िया, इन स्मूथ वे। नंबर टू, वी वॉन्ट मनी, वी वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी टू मेक अवर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस। तो पोएट कहता है कि बिकॉज ऑफ दिस सिंगल माइंडेडनेस टू प्रॉब्लम्स आर टेकिंग बर्थ। नाउ लिसन, नंबर वन, नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, वी आर सो मच एनग्रोस्ड इन ब्लाइंड रैट रेस ऑफ अर्निंग मोर एंड मोर मनी कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं। वी डू नॉट नो अवर पर्सनैलिटी। दूसरा, वी आर फीलिंग फियरफुल अबाउट डेथ, डेथ इज टॉर्चरिंग अस 24/7 एंड इवन इन टेंडर एज, कितनी कम उम्र के लोग हैं इनको बीमारियां लग गई हैं, बीपी है, शुगर है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम। तो हमें डर लगता है कि पता नहीं लाइफ का कब एंड हो जाए, इससे पहले पैसा कमा लो। तो दिस इज ए विशियस सर्कल, हम पैसा कमा रहे हैं और बीमारियों में लगा रहे हैं। तो पोएट हैज मेंशन्ड, पैब्लो नेरुदा हैज मेंशन्ड, नंबर वन, सिंगल माइंडेडनेस, वी आर थिंकिंग ओनली इन वन डायरेक्शन टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस। और इस ब्लाइंड रेस में हमें दो प्रॉब्लम्स आ रही है, नंबर वन, प्रॉब्लम ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, एंड नंबर टू, फियर ऑफ डेथ। तो पोएट इज सेइंग, शायद, परहैप्स, ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। जब आप मेडिटेशन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो हो सकता है कि जो ये आपकी सैडनेस है ये खत्म हो जाए, और शायद अर्थ हमें ये लेसन सिखाए। क्या, कौन सा लेसन, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, मीन्स यू नो अर्थ कीप्स प्रोड्यूसिंग समथिंग, अर्थ का नेचर है। टुडे यू प्लांट ए सीड इन द अर्थ, आज आपने एक बीज बो दिया जमीन में,
So it will not show result overnight, but after a few days a sapling will come out. It means inside its womb, जैसे एक मदर के गर्भ में बच्चा, inside the womb of a mother बच्चा नॉरिश होता है, then ultimately comes out. In the same manner, in the womb of earth, mother अर्थ कहते हैं, आपने सुना ही होगा, अर्थ को भी मदर कहा जाता है. इन द वॉम्ब ऑफ मदर द सीड कीप गेट नॉरिशमेंट एंड अल्टीमेटली इट कम्स आउट एज अ सैपलिंग. तो इसका मतलब अर्थ पेशेंटली उसको अंदर ही अंदर नॉरिश कर रही है. इट इज नॉट शोइंग एनी क्विकनेस. अर्थ टीचेस अस लेसन ऑफ पेशेंस. Why has Pablo Neruda give a reference of earth over here? Because Pablo Neruda wants to tutor us lesson of patience. तो अर्थ कैन टीच अस. जब हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, आपने बीज बोया, नो रिस्पॉन्स टिल वीक्स, टिल फोर्टनाइट, मे बी टिल ए मंथ और फॉर ए मंथ, हमें लगता है सब खत्म. लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. इसका मतलब इफ यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन टुडे, you will not get result after 2 days, after 1 week, after fortnight, but after a month, after 2 months you will definitely get response. आप जिम ज्वाइन करते हैं, if you are extremely obese or extremely thin, you will not get result overnight. Patience, keep going, keep doing your job. After 2 3 4 months, 5 months, 1 year, definitely your body will show changes. In the same manner, अर्थ से सीखिए पेशेंस रखना. नाउ पोएट इज सेइंग आई विल काउंट अप टू 12, मीन्स मैं 12 तक गिनूंगा. आई हैव इन द बिगिनिंग ऑफ द पोम मेंशनड यू व्हाई हैज पोएट टेकन नंबर 12. तो मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. आप सब शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा. तो इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, पैब्लो नेरूदा हैज अपील्ड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू फॉलो द passion of meditation, to follow the path of introspection if you want to live a comfortable, peaceful and contented life. What are friends? कोई शक, कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेज सकते हैं. बाय बाय.